Hello friends, welcome to this channel. Now today we will discuss a very important topic of data structure, and this topic is linear search. So basically what is linear search? Linear search is just like a counting. Suppose simply I'm writing 1, 2, 3, 4, 5, and the basic difference between two numbers is 1. Means both numbers have the same difference, that is called the linear. Means in just like a counting terms from 1 to 100 and anything numbers. So simple, I make an array, suppose int a, just a moment. Suppose I need to uh, delete this data, and simply I'm writing an array of 5, and simply I'm putting 5 numbers only, 4 and 5. This is an array, and I want to search this number. I want to search this number with the help of linear search. So simply you think what is the logic behind to search this particular element, and you make an index of this an array 0 1 2 3 4, means this element is particularly exist on the index number 3. So what will be the logic? First of all, you make an loop for int I equal to 0, and how many elements are existed, how many elements are exist into this array. 1 2 3 4 5 total elements is equal to 5, so simply less than equal to 5 and I plus plus. Very simple. So now you can apply this simply. Now I am taking an condition, if condition, if array of I is equal key means what? Key is just like a target element. Now 4 is my key, it is an a target element. Now area of I, it means area of I means area of 0. area of 0 पर कौन सा एलिमेंट है? सिंपली 1, and 1 equal key means 4, means it is incorrect, it is incorrect. Now again we apply array of 1, again apply array of 1 and equal 4. area of 1 पे कौन सा एलिमेंट है? 2, means it is also incorrect. Similarly 3 equal 4, it is also incorrect. Now array of 3 equal 4, means array of 0 1 2 3, and this is the element, the required element to find the particular this key, and this is my target element. So simply logic behind this, simply हम लोग क्या कर रहे हैं इस एरे में बिगिनिंग से, सिंपली क्या कर रहे हैं इस बिगिनिंग से हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है मेरा रिक्वायर्ड एलिमेंट फाइंड हो रहा है, पर्टिकुलर लोकेशन पर इंडेक्स हो रहा है, फाइंड हो रहा है. तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक हमने एरे बनाया और एरे को मैंने मैच कर दिया की से, और अगर मेरा मैचिंग हो गया तो सिंपली हम क्या लिख रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी, एंड सिंपली इफ अगर आपका इंडेक्स 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे i इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिंपली पोजीशन आप क्या कर सकते हैं, i प्लस 1, या अगर पोजीशन आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंपली आप क्या प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे सिंपली परसेंट डी और सिंपली लिख देंगे आई. तो आप क्या कर लेंगे, पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे. तो दिस इज द वेरी सिंपल एंड बेसिक logic to search an element with the help of linear search. Now on the basis of linear search we can easily
we can easily apply the index sequential search. We can study into the next lecture about index sequential search, which is very important as well. सो बेसिकली लीनियर सर्च का अप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर, रियल लाइफ में, रियल वर्ड्स में लीनियर सर्च को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? लीनियर सर्च को हम आप एवरीवेयर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज किसी भी स्टूडेंट का पर्टिकुलर आईडी सर्च करना है, या फिर किसी स्टूडेंट का नेम सर्च करना है, किसी भी डेटाबेस से कुछ भी सर्च करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली लीनियर सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि ये डेटा को क्या करता है? अनसॉर्टेड वे में, किसी भी डेटा को अनसॉर्टेड वे में क्या करता है? सर्च करता है। इसके लिए हमको लिस्ट को, एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरी लिस्ट, अगर मेरा एरे सिंपली क्या है? अनसॉर्टेड है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थोड़ी सी इसकी चीज़ ये है कि ये मैक्सिमम मतलब स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ये अप्लाई होता है। बट इन रियल वर्ड्स हम लोग बाइनरी सर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वैसे मल्टीपल काइंड्स ऑफ सर्चिंग एलिमेंट्स, सर्चिंग मेथडोलॉजीज यूज करते हैं, लाइक जंप सर्च, इंटरपोलेशन सर्च, बाइनरी सर्च, एक्सपोनेंशियल सर्च, हैश बेस्ड सर्च, बहुत सारे सर्चिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं। बट आपके करिकुलम के अकॉर्डिंग अभी हमको सिंपली क्या पढ़ना है? लीनियर सर्च, इंडेक्स लीनियर सर्च, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च। सो अगर आपको ये समझ में आया होगा, तो आई होप आप अपने मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि डन, आई गॉट इट। और मैं आप लोगों को सिंपल एक होमवर्क दे रहा हूँ। इस होमवर्क में आपको सिंपली क्या करना है? आपको सपोज मैंने एक एरे लिया, इस एरे में 1 2 3 2 5 2 ये मेरा एरे है। अब इस एरे में कितने नंबर्स ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज, कितने डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे एरे में आया है? तो आपको सिंपल एक काउंटिंग करना है, यानी 2 1 2 एंड 3, यानी ये 2 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है। तो आपके आउटपुट में आना चाहिए 2 कम्स 3 टाइम्स, 2 कम्स 3 टाइम्स। ये आपका होमवर्क है फर्स्ट। सेकंड होमवर्क क्या है कि आपकी पोजीशन बतानी है, यानी कि 2, ये अगर पोजीशन 1 मान लेते हैं, 2 मानते हैं, 3 4 5 एंड 6, तो पोजीशन कितना है? 1, यानी 2 कम्स at the position 2, पोजीशन 4 एंड पोजीशन 6। तो आपको ये 2 होमवर्क मैं दे रहा हूँ, जिसमें एक नंबर ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज की काउंटिंग करनी है, और नेक्स्ट कितने पोजीशन पे वो डुप्लीकेट वैल्यूज आया है, ये आपको अपने से लॉजिक अप्लाई करना है। अगर नहीं समझ में आता है, तो आप सिंपली कमेंट में आप कर सकते हैं कि मुझे ये इसका कोड रिक्वायर्ड है, चाहिए इसके लिए। तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में इसके लिए आप लोगों की कोडिंग और सिंपल लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।